नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा। चल शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। ऑपरेशन सिंदूर तैयारी और सटीक हमलों को लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की रणनीति सटीक थी। सरकार ने पहली बार तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है और बिना किसी दबाव के सेनाओं ने अपना काम किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 आतंकी ठिकानों को चुना गया था। जम्मू कश्मीर से 5 और पंजाब से 4 ठिकानों को यहां निशाना बनाया गया है, जिसमें वायुसेना ने भरपूर मदद की है। उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि हम किसी भी समय युद्ध की ओर जा सकते हैं, इसलिए दुश्मन के ड्रोन को पहचानने और उसे मार गिराने के लिए जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान नई ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। But certain things important. 22nd April, you're aware what happened in Pahalgam, and it actually shocked the nation. 23rd is the time when next day itself, we all sat down. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that. And that is what kind of raises up your morale. And that is how it helped our army commanders or commander-in-chiefs on ground to kind of act as per their wisdom. But this time, I think that is Pahalgam 25, it was wide and deep where we hit the heartland. This was the first time we hit the heartland. And of course, our target was the nursery and the masters. And like I told you, and this has never been done, and even Pakistan was not expecting that the heartland will be hit. And that's what came as a shocker to them. But were we prepared for it? Yes, we were prepared for it to absorb the blowback which will come up. So finally, we chose 5 targets in Jammu and Kashmir and 4 targets in Punjab, and out of which 2 were with the Air Force, because the kind of ammunition which was required was much more. And at such a long range, if you have to send it, then the options are either with the Army, Navy, Air Force, long range weapons, or with the Air Force. So we decided to go with the Air Force, and it helped us. And any kind of information which they have, if they give us, for example, drones, as you see where the drones are flying, so that if it is put in the app, it helps us knowing that whether it's our drone, whose drone. And this kind of a thing we have tried in the Amarnath Yatra recently in J&K. And if it becomes successful, we'll develop it more. And with the kind of intelligence here which is sitting here, definitely we'll be able to make it more, if I can say that. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज किए गए अमृतसर कटरा वंदे भारत ट्रेन के ऑनलाइन उद्घाटन के अवसर पर जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना सहित भाजपा के कई नेता, रेलवे के अधिकारी भी शामिल हुए। खटाना सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लिए यहां खुशहाली ला रहे हैं और इसके लिए वो उनके आभारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को जम्मू कश्मीर का विकास रास नहीं आ रहा। बिल्कुल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कितना recording stopped. सम्मानित करें। इसके वज़ीर-ए-आज़म ने जम्मू कश्मीर में हर तरफ खुशहाली लाई है। वो ट्रेन हो, इंडस्ट्री हो, वो किसान हो, वो बागात हो। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज ने यहाँ हुकूमत करी है 70 साल, उन्होंने यहाँ डिस्ट्रक्शन लाई है, उन्होंने यहाँ बर्बादी लाई है, उन्होंने नौजवान बच्चों को उनका जहन खराब करा, उनको पत्थरबाजी के लिए, कैलेंडर के लिए इस्तेमाल करा है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है
आज जम्मू कश्मीर का नौजवान विकसित भारत में अपना फ्यूचर देखता है। और मैं देश के वजीर आजम और खासकर हमारे जो रेल मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनको यहाँ मुबारकबाद दूंगा कि कश्मीर में भी, जम्मू में भी एक हमें यहाँ डिविजनल हेड दिया और रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, रोड का बढ़ाया। देखिए, आधुनिक भारत की आधुनिक देन है और विकसित भारत अमृतकाल का दौर है। विकसित भारत की लय पे विकसित जम्मू कश्मीर हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पूरे देश को और खास करके 3 प्रमुख राज्यों को, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और महाराष्ट्र, चाहे बेंगलुरु से बेलगावी हो, नागपुर से पूना हो, कटरा से अमृतसर हो और माता वैष्णो देवी से गुरु रामदास की नगरी में ट्रेन का जाना, वो भी वंदे भारत का, तो ये मुझे लगता है इससे बड़ा स्वर्णिम दौर खास करके रिलीजियस टूरिज्म के लिए नहीं हो सकता। विकसित भारत की लय पे जम्मू कश्मीर विकसित हो रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके जम्मू को भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व ने भी और केंद्रीय सरकार ने भी हमेशा प्राथमिकता दी है और उसी का कारण है कि जम्मू कश्मीर को आज 5वीं वंदे। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी सहित कटरा के ही कारोबारी जितने भी हैं और अमृतसर कटरा के बीच शुरू हुए वंदे भारत ट्रेन का उन्होंने स्वागत किया है और इस ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पर कटरा रेलवे स्टेशन पर भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम के अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों के शुरू होने से एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर रोक लगेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के वो इलाके भी रेल संपर्क से जुड़ जाएंगे जहां अभी तक फिलहाल ये सुविधा नहीं पहुंच पाई है। दूसरी ओर कटरा के कारोबारियों ने ये बता दिया कि अमृतसर और कटरा के बीच में वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से उन्हें बेहद फायदा होगा। स्टैंड में काफ़ी वेटिंग है, तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी बोर्ड में रख रहे हैं और वो डब्बे बढ़ाए जाएंगे और उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी और ट्रेनें भी चलेंगी और मालगाड़ियाँ भी चलेंगी, जिससे हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा और हमारे टूरिज्म में भी काफ़ी इजाफा होगा और लोगों को आने जाने में कोई मुश्किलें नहीं होंगी। जैसे पीछे बारिशें थी, जब रोड बंद हो जाता है, रामबंद से ब्लॉकेज हो जाती है, तो उसमें लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं और उम्मीद करते हैं कि अब ये जितनी ट्रेनें चलेंगी उससे ये दिक्कतें लोगों की ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरा, जो एक मोनोपोली थी हवाई जहाज़ों के किराए की, वो भी ये ट्रेनें चलने से अब कश्मीर में लोग सस्ते रेट पे पहुंच सकेंगे और लोगों को आज एक आपने देखा कि कटरा के लोगों में, ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लोगों में खुशी का माहौल है और लोगों को अब उम्मीद करते हैं कि जहां जहां ट्रेनें नहीं गई वहां भी, और खिता मैंने जैसे अपने भाषण में भी, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी वहां बैठे थे, मैंने कहा आप हमारा संदेशा खिता पीर पंचाल की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी दे दीजिए कि खिता पीर पंचाल में भी बहुत जल्दी ट्रेन दौड़े ताकि उस खिते में भी लोगों को फ़ायदा हो और हमारा चनाब वैली के लोगों को भी फ़ायदा हो। और ओवरऑल हम चाहते हैं पूरा जम्मू कश्मीर जो है वहाँ ट्रेनों का जाल बिछे, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा बेरोजगारी में, टूरिज्म में, जो भी तरीके से जो लोगों को है, और दूसरा लोगों की पूरे देश के साथ एक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जब आपको टूरिज्म समझते हैं कि आपको बढ़ाना है, आज कितनी टैक्सी यहाँ से अमृतसर जाती है? मुझे नहीं लगता पूरे दिन में 10 भी जाती होंगी। कितनी बसें जाती हैं? मगर एक वंदे भारत चलेगी तो आपके 650-700 आदमी जाएंगे, तो 700 आदमी डेली आपके यहाँ आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कम भी लेंगे तो आपके 200-150 कमरे तो होटल लगेंगे, उसी के साथ ड्राई फ्रूट, उसी के साथ बाकी चीजें, तो कटरा का जो है उससे ग्रोथ होगी, व्यापार बढ़ेगा, ऐसी हमारी सोच है। जब से श्री माता वैष्णो श्राइन के अंदर जहाँ चरणों में रेलवे जो यहाँ पहुंचा है, तब से मुझे लगता है कि काफी इजाफा हुआ है। जो लोग जहाँ नहीं पहुंच पाते थे या सड़क के रास्ते आते थे, आज ट्रेन हर मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर शहर से जुड़ी हुई है और लोगों का इजाफा हुआ है। अब श्रीनगर जाने से श्रीनगर तो टूरिज्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुझे लगता है कि इसमें कटरा को फायदा होगा, क्योंकि लोग कटरा के रास्ते श्रीनगर जाएंगे, उससे हमें कटरा का जो टूरिज्म है, मैं कहूँगा कि कटरा में यात्री आते हैं, यात्री जो है उनकी तादाद बढ़ेगी। आज भारत के साथ जिस तरीके से कटरा जुड़ रहा है, जिस तरीके से कश्मीर, जम्मू व कश्मीर जुड़ रहा है,
उससे मिलिटेंसी पे भी लगाम लगेगी और मिलिटेंसी खत्म हो गई यहाँ पे। और मेरा ये माता रानी से भी मैं विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द जम्मू व कश्मीर से मिलिटेंसी खत्म हो और यहाँ पे लोग आए, ज्यादा से ज्यादा आए, ताकि हमारे लोगों का व्यापार। तो भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती की पवित्र चांदी की छड़ी आज विधिवत पूजा अर्चना के बाद मंडी स्थित श्री बुड्ढा अमरनाथ जी के मंदिर से आज पुंछ शहर स्थित श्री दशनामी अखाड़ा में पहुंचने के साथ ही विश्वानंद आत्मानंद सरस्वती जी महाराज के नेतृत्व में ये यात्रा संपन्न हुई है और पवित्र छड़ी की दशनामी अखाड़ा मंदिर पहुंचने पर पुलिस द्वारा सलामी दी गई और इसके बाद छड़ी को मंदिर की अगले 1 वर्ष के लिए स्थापित इसमें मंदिर में कर दिया गया है और पवित्र छड़ी के आगमन के साथ ही पिछले कई दिनों से चलने वाली श्री बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा का समापन हो गया है और यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने पूरे मार्ग में जयकारे लगाए और भक्ति भाव से छड़ी का स्वागत किया। वहीं प्रशासन और सुरक्षा बलों की ओर से भी यात्रा को सफल बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। ये वार्षिक धार्मिक आयोजन पुंछ जिले की आस्था, संस्कृति और सामुदायिक एकता का प्रतीक माना जाता है। महीने से जो श्रावण मास का पर्व चल रहा था, श्रावणी पर्व जिसे कहते हैं, वो आज समाप्त हुआ है और उसके साथ साथ में छड़ी यात्रा का भी, रक्षाबंधन का त्योहार भी आज पूर्ण होती हुई है। 3 दिन तक बुड्ढा अमरनाथ जी छड़ी यात्रा स्थापित की गई थी। वहाँ पर बुड्ढा अमरनाथ जी के साथ छड़ी का पूजन भक्तों ने बहुत संख्या में 3 दिन किया। कल वहाँ पर हवन हुआ। आज जो है वहाँ से छड़ी यात्रा श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव के साथ भगवान के जय जय घोष होते हुए बुड्ढा अमरनाथ जी से सवेरे प्रारंभ होकर अभी जो है दशनामी अखाड़ा में पहुंचे हैं और पुनः पहले की भांति छड़ी अपनी जगह पर स्थापित की गई। इस अवसर पर सभी देशवासियों को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। शुभ शुभ शुभ। अभी यहाँ पर नीचे सभागृह हॉल में तो अपने अपने विचार सभी गणमान्य व्यक्ति प्रकट करेंगे। आजादी का महोत्सव कार्यक्रम के तहत पुंछ जिले के ही खेल स्टेडियम में एक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, जिस जिला विकास आयुक्त पुंछ जो कि अशोक कुमार शर्मा हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शफकत हुसैन भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की है और ये रैली पुंछ के विभिन्न स्थानों से होते हुए कलाई और चरणक पहुंची है और फिर खेल स्टेडियम में वापस पहुंची। तो रैली का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को रेखांकित करना था। इस अवसर पर डीसी पुंछ ने खुद बाइक चलाकर रैली में भाग लिया, जिससे लोगों में जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। स्थानीय नागरिकों और युवाओं ने तिरंगे के साथ इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डिफरेंट फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैलीज, तिरंगा कंसर्ट जो यहाँ पे प्लान किए गए हैं,
उसके तहत आज एक बाइक रैली जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है, जो यहाँ से निकलेगी शेर कश्मीर ब्रिज से होते हुए कलाई ब्रिज से वापसी जो है वो बाया चंडक जो है वापस इसी जगह कल्मिनेट होगी। तो इसमें काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ लोकल लोग भी इसमें शामिल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये एक सक्सेसफुल इवेंट है। और इस तरह से 15 अगस्त तक और भी जो तिरंगा के रिलेटेड फंक्शंस हैं वो अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। एक मोटर बाइक रैली ऑर्गेनाइज की हुई है 15 अगस्त के सिलसिले में। ये आने वाले दिनों में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होने वाले हैं और आज का जो हमारा इवेंट्स है, जो मोटर बाइक रैली हमारी यहाँ से सिटी से निकलेगी और एसके ब्रिज से वाया कलाई पहुँचेगी, कलाई से चंडक और वापस यहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड पुंछ में वापस कल्मिनेट हो जाएगी। उस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की तरफ से ये तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। ये तकरीबन 22 किलोमीटर लंबी रैली थी जो स्टेडियम पुंछ से शुरू होकर स्टेडियम पुंछ में ही इख्तिताम पजीर हुई। मकसद इस रैली का ये था कि देशभक्ति का, प्यार का, आपसी भाईचारे का संदेश पहुँचाया जाए और लोगों को खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बताया जाए कि हमारा जोशो खरोश किसी तरह से कम नहीं हुआ है और हम अपने इस तिरंगे की हिफाजत के लिए हमेशा की तरह। तो भालेसा की चंगा पंचायत में कल भारी बारिश के कारण एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 मंजिला इमारत भर-भरा कर ढह गई। यह हादसा कल शाम करीब 4 बजे उस समय हुआ जब लगातार बारिश से इमारत के नीचे की जमीन धंसने लगी और देखते ही देखते पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। इमारत में 4 परिवार रहते थे जो हादसे के समय बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर निकलने में सफल रहे। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ सभी का सामान मलबे में जरूर दब गया है। बेघर हुए जो परिवार हैं उनके प्रशासन ने तुरंत राहत और मदद के लिए कदम उठाए हैं। स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रहा है और पीड़ित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की संभावना जताई जा रही है। ये मकान जो है 4 दिनों से बिल्कुल रूबरू में ये गिरने को तैयार था, लेकिन जब ही कल 4 बजे हो गया सर, तो ये गिरने की आवाज़ आ गई सर। तो जितने भी यहाँ हमारे परिवार के 4 भाइयों का मकान था, ये बाहर निकल गए और मकान पूरा डैमेज हो गया, जिसमें हमारे परिवार जो बंदे थे, हमारे नफर बच गए, लेकिन माल शाल जो भी था वो उसी वक्त निकाला गया। और आपने खुद देखा सर क्या हाल है मकान का, बिल्कुल बारिशों की वजह से सर। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब यही सर, हम गरीब हैं, मकान जो बनाया था ये 4 भाइयों ने, तो एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से, बरियाल साहब से, तहसीलदार साहब से कि वो आके यहाँ ये देख लें कि क्या हुआ और हमें कुछ रिलीफ दिया जाए। सिर्फ 5 मिनट लगे इस मकान को गिरने में। जो ही हम देखते देखते ये मकान यहाँ नीचे पहुँच गया, तो जान बच गई लोगों की, बच्चों की, लोगों की और हमारे बुजुर्गों की, माल मवेशी की। तो सब कुछ ठीक हुआ और ये जो मकान था ये बारिशों की वजह से डैमेज हो गया था और गिर गया। तो जो जान बची वो आराम से, मतलब बाकी कुछ नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ इस मकान की जो हालत है वो ख़त्म हो गई, बाकी सब ठीक रहा। अब एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे देखें मकान की हालत और हमें कुछ कंपनसेट करें, ताकि हम गरीब लोग हैं, हम दिहाड़ी मजदूरी लगाते हैं और फिर शाम को कहीं खाना खाते हैं, तो हम बहुत गरीब हैं। हाँ, यहाँ आ जाएं, यहाँ इस मकान की मतलब हालत देखें, उस हिसाब से वो हमें भी थोड़ी सी मदद मिलनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो लिहाजा कल माल बाहर निकाला, जिस वक्त गिरने की आगे नौबत आ गई तो माल बच्चे वगैरह साइड निकाले। यहाँ लोग जो थे, बच्चे जो थे बाहर से, सब हमने साइड किए और ये जो मकान जो उस वक्त गिर गया, तो इसमें जो है ये बारिश की वजह से खासकर, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बारिशों की जो बारिशें आजकल हो रही हैं इनकी वजह से ज़मीन जो धंस गया। आपके सामने सारी कुछ तस्वीरें हैं, सारा कुछ है, यहाँ जो कुछ भी हुआ है तो ये आपके सामने रूबरू है। तो लिहाजा मेरी यही डीसी साहब से, एसडीएम साहब से या दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे जो ऑफिसरान से, सबसे यही गुजारिश है कि जो ये जो हमारे लोग जो हमारे गरीब परिवार जो है ये बेरोजगार हैं,
तो लिहाजा इनकी ये आयानत की जाए, इनको जो है मुआवजा वगैरह जो कुछ भी हक तौफीक है ये दिया जाए। लिहाजा ये अपने फिर माल अयाल को इसमें फिर यानी उसमें रख देंगे, वरना इसको माल अयाल रखने के लिए कहीं जगह नहीं है। तो मेंढर की बालाकोट तहसील की पंचायत कल्लर मोरा में कल रात एक कच्चा मकान अचानक ढह गया। ये मकान तफ्तील खान का था और साथ ही तफील खान ने ये बता दिया कि पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के कारण मकान की जमीन धंस गई थी, जिससे दीवारों में दरारें आ गई और रात में पूरा मकान ढह गया। सौभाग्य से हादसे के समय परिवार के सदस्य बाहर थे, जिससे किसी भी जानी नुकसान को यहाँ नहीं झेलना पड़ा। और तफील खान ने प्रशासन से इस नुकसान का मौके पर जायजा लेकर और उचित मुआवजा देने की मांग की है, ताकि वे दोबारा से अपना घर बना सकें। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तीसरा मकान कल परसों बारिश रही है, कल तूफानी बारिश ना मकान थोड़ा लिया तो थम जम लाए कोशिश की थी। मैं पूछा ही ना पटवारी या क्या ना तहसीलदार हुए थे, किसी ने आ गया है। तो वही चीज़ करने के बावजूद आई रात 1 बजे मकान टेक गया। सामान जो कि गल बकवास है भी चीज है। इस तो पहले भी गवर्नमेंट ने कोई सहायता नहीं दी थी, इस तो बाद भी मैं बताया कह दी सी है। तो लिहाजा हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई मदद करना चाहना है घर किसी पूछ सके है कि गरीब आदमी को सहायता करने लगे, नहीं करने तो फिर चलो या गोर या और। सुरनकोट में जीआर बेग मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष इश्तियाक अहमद बेग ने अपनी टीम के साथ नशा विरोधी अभियान के तहत यहां आप देखिए नंगे पैर मार्च निकाला है। और इस मार्च का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे से दूर करना है, नशे की लत से बचाना और लोगों में जागरूकता पैदा करना है। सुरनकोट के लोगों ने इस मार्च में भाग लेकर इस अभियान में अपना योगदान दिया। इश्तियाक बेग ने लोगों से अपने बच्चों को नशे की लत से दूर रखने और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। स्थानीय लोगों ने फाउंडेशन का आभार व्यक्त कर इस पहल की सराहना की है। लोगों ने कहा कि पीर पंचाल में इस पिछड़े क्षेत्र में लोगों के कल्याण के लिए इस तरह की गतिविधियां बेहद महत्वपूर्ण हैं। सिलसिले में आम लोगों से भी अपील है, जो मसाजिद जो मंदिरों के पुजारी है या चर्चों के ये पादरी है, उनसे भी अपील है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और लोगों को आगाह करे कि वो इस नई पौध जो हमारी नई पौधे जो ख़राब हो रही है नशे की लत की वजह से, उनको इस लत से निजात दिलाए। पंचाल तो हम जीआर बेग मेमोरियल ट्रस्ट पिछले कई सालों से लगातार हम आ रहे हैं यहाँ मेडिकल कैंपों के लिए भी और अब ये नशा मुक्त अभियान के लिए। इस जिले में 14 दिसंबर को जो हमारी सरपंच आला थी मोहतरमा फातिमा रसूल बेग, उनका इंतकाल हो गया है। इसके बाद हमने एक स्कीम चलाई है, बेग फातिमा हुनर से रोज़गार स्कीम के नाम से टेलरिंग सेंटरों का हम क़याम अमल में ला रहे हैं। अब आज तक हमने 5 सेंटरों का क़याम अमल में लाया है। पिछली बार हम छात्रों गए थे कश्तवाड़, वहाँ भी 1 सेंटर का क़याम किया, डाट सरात्राल में भी किया है, शहर में 5 किया और आज यहाँ एक और टेलरिंग सेंटर का हम इफ्तिताह भी करेंगे। और मरोट में एक मेगा मेडिकल कैंप का इनिकाद भी हो रहा है जो 10 बजे से शुरू होगा। इस सिलसिले में पीर पंचाल और ख़ासकर यहाँ सुरनकोट के आवाम से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो जोग दर जोर उस कैंप में आए और माहिर डॉक्टर साहिबान का मशवरा ले और उन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी तकसीम की जाए। जम्मू में आज स्वच्छ जम्मू रन 2025 का आयोजन किया गया, जिसका आगाज हुआ है। और आप देखिए यहाँ बाहू प्लाजा से डिवीजन कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने आगाज करवाया और इस अवसर पर जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देव्यांश यादव, निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और ये दौड़ 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर 2 श्रेणियों में आयोजित हुई। प्रतिभागियों ने रेलवे स्टेशन, पनामा चौक, विश्वविद्यालय, गुज्जर नगर और जेल चौक जैसे प्रमुख मार्गों से होते हुए बाहू प्लाजा पर दौड़ का समापन किया है। और ये दौड़ होने के बाद आप देखिए लोगों में उत्साह भी नजर आया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने जोश और उत्साह के साथ दौड़ पूरी कर स्वच्छ जम्मू का संदेश दिया।
जो ये हर घर तिरंगा जो चल रहा है हमारा स्वतंत्रता दिवस उपलक्ष्य में, तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर जो है आज जो है स्वच्छ जम्मू मैराथन रन रखा है, जिसके अंतर्गत सभी वर्ग से सभी एज के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने देखा है। तो इसमें एक तो पहले तो हर घर तिरंगा हमारा स्वतंत्रता दिवस के बारे में, और दूसरा एक स्वच्छ रहने का बहुत बड़ी यहाँ पे संदेश है। तो इसमें सभी लोग जम्मू के जो हैं बड़े जोशो खरोश के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जम्मू अखनूर मार्ग पर प्रस्तावित नए टोल प्लाजा को लेकर विरोध तेज हो गया है। अखनूर के लोगों ने आज टोल प्लाजा के निर्माण स्थल पर धरना देकर इसका कड़ा विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि परिवहन मंत्री ने संसद में स्पष्ट बयान दिया था कि 60 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल प्लाजा नहीं लगेंगे, लेकिन जम्मू में उनके इस बयान का पालन नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि टोल लागू होने से न केवल यात्रा किराया बढ़ेगा, बल्कि रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाएंगे। तो अखनूर और आसपास के व्यापारी ज्यादातर सामान जम्मू से लाते हैं, लेकिन ऐसे में टोल लगने से उनकी परिवहन खर्च में वृद्धि होगी, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। चलिए, न्यूज ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।